Let's start. Yes, rectification of error. Till now, what we have discussed, when there were the errors in one account and when there were errors in two or more account. Today, we are going to pick the next topic, which we call suspense account. Directly or indirectly, somewhere I discussed about this account with you. Whenever we are doubtful, if we do not have any other account which is to be debited or credited in the rectified entry, then we have to take the help of this account. It is a temporarily opened account. Temporarily opened, or you can say it is a temporary account. Open account to remove errors or to rectify the errors. एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम ये अकाउंट ओपन करते हैं and as and when all the errors are being removed, this account will automatically closed. And secondly, suspense account will be prepared for those errors only which affect the trial balance. It will be prepared. Some features I will read it from your book also, but what are the general features I am just writing on the book, right? Yes, it is prepared to rectify those errors which affect our trial balance. Those errors which affect our TB means trial balance. जो एरर्स हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेंगे उन्हें रिमूव करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं. सो सस्पेंस अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड लाइक ऑल द लेजर अकाउंट्स वी प्रिपेयर. दिस विल बी इट्स फॉर्मेट, दैट इज particulars amount. ठीक है, हाउ इट इज बीइंग रन वी विल सी. First we see from your book how he is defining this account and what are the features he is mentioning in your book. Let's see. Rectification of errors. Topic is suspense account. Yes, here it comes. 15.22 page. 15.22 page पे आ जाइए. It is an imaginary account. I call it as a temporary account. ठीक है, imaginary account. Its nature is not certain. ठीक है, we will not be defining it. It is a real account. It is a nominal account because it depends upon the difference in the trial balance. Trial balance का अगर दोनों साइड का टोटल नहीं मिलता, उस टोटल के ना मिलने के कारण को ढूंढने के लिए हम लोग ये अकाउंट बनाते हैं. So its nature is not certain. The suspense account is a temporary account. Temporary account, same line he is writing in the book, in which the difference in the trial balance is placed and wiped out when all the errors are being located or rectified. कहता है ये सस्पेंस अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं जब ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल नहीं मिलता. सो हाउ विल आई गेट कि ट्रायल बैलेंस का टोटल कब नहीं मिलता. उसने क्वेश्चन में एक लाइन लिखी होगी, वी फाउंड, क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होगा अब रेक्टिफिकेशन का, वी फाउंड दैट trial balance does not agrees so we opened suspense account. जब ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता तो उसने एक लाइन क्वेश्चन में लिखी होगी, सो वी ओपनड सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, अब इस सस्पेंस अकाउंट को बनाने के लिए हम एक बैलेंस दिया होगा, उसने क्या लिखा होगा, डेबिट साइड. फॉर एग्जांपल दीज आर द एग्जांपल्स आई एम राइटिंग. ट्रायल बैलेंस कब मैच नहीं होगा, एक साइड बड़ी होगी दूसरी छोटी होगी. वैसे हम लोग कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स मैच होनी चाहिए, बट समटाइम्स व्हाट हैपन, वन साइड विल बी ग्रेटर एंड अनदर विल बी द शॉर्टर साइड. हाउ वी विल बी रिकंसाइलिंग इट, क्या वर्डिंग लिखी होगी उसने, डेबिट साइड ऑफ टीबी एक्सीड्स with 2000 rupees. What it means,
उसने एक लाइन लिखी है कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 2000 रुपए से ज्यादा है। इट मींस कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। पहले तो इस लाइन का मीनिंग सुनो। डेबिट साइड ऑफ टीबी एक्सीड्स विद ₹2000 मींस डेबिट साइड में ऑलरेडी 2000 ज्यादा लिखा है। अगर मैं क्रेडिट साइड पे भी 2000 लिख दूं तो मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट बनाते हुए आपने ये 2000 रिवर्स साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड, क्योंकि ऑलरेडी डेबिट साइड पे हमारा टोटल क्या है, 2000 से ज्यादा है। तो in order to rectify it, in order to match both the sides, you will be putting that balance on the reverse side, and this is what I am preparing, suspense account. तो सस्पेंस अकाउंट का जो भी आपको ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्टली यू नीड टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। अब दूसरी लाइन क्या लिखी हो सकती है, एक्सेस डेबिट साइड, पहले मैंने लिखा डेबिट साइड एक्सीड्स विद ₹2000, अब उलट हुए तो लिख सकता है क्रेडिट साइड एक्सीड्स, क्रेडिट साइड एक्सीड्स ₹500 ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब अब ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड 500 रुपए से क्या है, ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड पे 500 रुपया पहले से ही ज्यादा है तो अब की बार आप बैलेंस कौन सी साइड पे लिखोगे, डेबिट साइड पे भी 500 लिख दोगे तो आपकी दोनों साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस फिर से क्या हो जाएंगी, मैच। सो व्हाट एवर साइड इज एक्सीडिंग, आपने उसकी रिवर्स साइड पे लिखना है। अगर वो लिखता है, आगे और देखो वर्डिंग, डेबिट साइड इज शॉर्ट, डेबिट साइड ऑफ टीबी इज शॉर्ट बाय ₹100। अब रिवर्स है, उसने क्या लिखा, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में 100 रुपया कम लिखा है, 100 रुपीज आर लेस। तो इस केस में आपने इसे डेबिट साइड पे लिखना है, क्योंकि डेबिट साइड पे अगर आपने 100 कम लिखा है तो और 100 लिख दोगे तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, फिर से मैच हो जाएंगी। सो व्हेनेवर ही राइट्स अबाउट शॉर्ट, आपने उसी साइड पे लिखना है ओपनिंग बैलेंस, एंड व्हेनेवर ही राइट्स एक्सीड, तो आपने बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे लिखना है, रिवर्स साइड पे लिखना है। सो हियर बाय शॉर्ट के केस में आई विल बी राइटिंग balance on the debit side itself. So these are the few cases which he will put. जरूरी नहीं है कि तीनों केसेस एक ही क्वेश्चन में होंगे, किसी में वो एक्सेस डेबिट साइड लिखेगा, किसी में एक्सेस क्रेडिट साइड लिखेगा, किसी में शॉर्ट लिखेगा। और अगला केस इसका रिवर्स क्या हो सकता है, क्रेडिट साइड इज शॉर्ट, क्रेडिट साइड ऑफ टीबी इज शॉर्ट बाय 200। क्रेडिट साइड पे 200 रुपया गलती से आपने लिखा ही नहीं, तो अब लिख दो ना, तो आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैक्सिमम ये 4 केसेस आएंगे भाई। यू हैव टू डिसाइड कि आपने ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में दे रखा है आपने कौन सी साइड पे लिखना है। वंस यू विल बी राइटिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑन द रॉन्ग साइड, आपका सस्पेंस अकाउंट ठीक नहीं बनेगा। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई करेक्टली कि वेयर आई शुड राइट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ माय सस्पेंस अकाउंट, व्हाटएवर ही इज गिविंग मी इन द क्वेश्चन। सो लेट्स प्रोसीड to the next, what else he is giving us in form of suspense account. Suspense account may be opened in the following circumstances. अलग से क्वेश्चन बनता है, मीन्स क्वेश्चन आएगा why should we open suspense account. So what are the reasons behind the opening of the suspense account? Let's see. To balance an agreed trial balance, disagreed trial balance, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा था। ट्रायल बैलेंस के टोटल्स को मैच करने के लिए आप क्या बनाते हो, सस्पेंस अकाउंट बनाते हो। देन टू पोस्ट डाउटफुल आइटम्स, मैं पहले दिन से कह रही हूँ, समटाइम्स वी आर डाउटफुल दैट विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। एक अकाउंट मेरे को पता चल जाता है कि मैंने डेबिट करना है, लेकिन दूसरे अकाउंट के बारे में आई एम डाउटफुल। इन दैट केस यू हैव टू ओपन व्हाट, सस्पेंस अकाउंट। एक तो डिसएग्रीड ट्रायल बैलेंस को एग्री करने के लिए, उसे मैच करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। एक डाउटफुल आइटम्स की पोस्टिंग करने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। नीचे देखो फीचर्स, इट इज एन इमेजिनरी अकाउंट, इट इज ओपन्ड व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। जब आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करता तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। कभी सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में लिख दिया जाता है, कभी क्रेडिट साइड पे लिख दिया जाता है। यस, उसने अगली लाइन लिखी यही है, इट इज पुट ऑन द साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विच इज शॉर्टर। जिस साइड का टोटल शॉर्ट होगा उस साइड पे हम सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे। तो कभी इसका बैलेंस डेबिट होगा, कभी क्रेडिट, अगला भी यही लिखा। इट इज अ टेम्पररी अकाउंट एज इट रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस टिल ऑल द एरर्स आर डिटेक्टेड एंड लोकेटेड। जब तक सारे एरर्स आपके लोकेटेड और डिटेक्टेड नहीं होते, रिमूव्ड नहीं होते, तब तक सस्पेंस अकाउंट चलता रहेगा।
अगर सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं हुआ तो एंड में आके आप इसे बैलेंस शीट में भी लिखोगे, कभी ये लायबिलिटी साइड पे अपीयर करेगा, कभी ये एसेट साइड पे अपीयर करेगा, बिकॉज इट डजंट हैव एनी फिक्स्ड नेचर, राइट। यूटिलिटी ऑफ सस्पेंस अकाउंट छोड़ दीजिए, सीधा 8th इलस्ट्रेशन पे आएंगे। लेट्स सी 8th इलस्ट्रेशन and the page number is 15.23. see that illustration, वही right entry, wrong entry and rectified entry. Let's see what he has asked. The following errors are located by a vigilant accountant in the books of accounts after the preparation of trial balance. Trial balance prepare करने के बाद हमारे एक अकाउंटेंट को नीचे वाली गलतियों के बारे में पता चला, आपसे पूछा है इन एरर्स को रेक्टिफाई करो। सस्पेंस अकाउंट की प्रिपरेशन नहीं है, बट सस्पेंस अकाउंट इन फ्यू एंट्रीज वी आर गोइंग टू ओपन। दिस इज फॉर राइट, दिस इज फॉर रॉन्ग एंड दिस इज फॉर रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड में आप फुल फ्लैश फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का, यहाँ पे आप अपने वर्किंग नोट्स की तरह विद शॉर्टकट्स यू कैन राइट, ठीक है। तो हियर डू आई राइट राइट एंट्री व्हिच आई कॉल टिक, wrong entry को I call cross, and hereby you have to write rectified entries. हेडिंग बना लीजिए। चलिए जी पहला पढ़िए। कैश पेड ₹2000 टू सुरजीत was correctly entered in cash book। पहले तो सही एंट्री करो, सुरजीत को आपने कैश पे किया, राइट एंट्री थी सुरजीत अकाउंट डेबिटेड टू कैश 2000, दैट इज द राइट एंट्री। आपसे गलती कहां हुई? was correctly entered in cash book but was not posted to सुरजीत अकाउंट। आपने कैश में तो टू कैश लिख दिया लेकिन डेबिट किसी को नहीं किया। इट मींस कि आपने क्रेडिट तो कर दिया कैश को लेकिन सुरजीत को डेबिट नहीं किया। सुरजीत को डेबिट नहीं किया तो अब कर देते हैं ना, सुरजीत अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, क्योंकि क्रेडिट वाला अकाउंट हमारा सही है। सो वी आर डाउटफुल विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। व्हेनेवर वी आर डाउटफुल वी हैव टू ओपन अ टेम्पररी अकाउंट एंड इमेजिनरी अकाउंट व्हिच वी कॉल सस्पेंस। इट मींस कि यहाँ पे सिंगल अकाउंट एरर है, सिर्फ एक अकाउंट में गलती हुई है, दूसरा अकाउंट मेरा क्या है, करेक्ट है। सो व्हेनेवर एरर इज इन सिंगल अकाउंट, हेडिंग भी यही बनाई है बुक में, एरर इन सिंगल अकाउंट एंड suspense account is to be opened. So we have to take the help of an imaginary account which we call suspense account, and here we write the amount 2000. Do write the narration already discussed with you. Cash paid to Surjit, ठीक है, narration के बिना incomplete है entry में। Being cash paid to Surjit, हाँ जी, not debited in Surjit's account, now rectified. आपकी बुक में उसने शॉर्टकट में लिखा है, that also you can copy from your book, that is being omission in Surjit's account rectified. Being omission in Surjit's account rectified. If somebody asks from you the nature of this error, then the answer will be it is error of omission, because half entry you passed and half entry you skipped, you omitted, आप भूल गए, ठीक है, you forgot to enter what is to be debited, so now you have to debit that, right? Narration you will complete yourself. Now come to the next. ये मैंने उस दिन भी बात करी थी, जब कभी भी केस अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग का आएगा उस केस में आपने कभी भी राइट और रॉन्ग नहीं लिखनी एंट्री। ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग के केस में कभी भी राइट और रॉन्ग नहीं होता, आपने सिंपली रेक्टिफाइड एंट्री लिखनी है। तो सेकंड में रेक्टिफाइड क्या होगी, बीआर बुक में 300 रुपया ज्यादा लिखा है, ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा, ठीक है। बीआर इज माई एसेट, एसेट को कम करने के लिए क्या कर दूं, क्रेडिट, ज्यादा लिखा है तो कम कर दो ना। सो बीआर is to be credited. Now I am doubtful कि डेबिट किसको करूं, so I have to take the help of suspense account. ये उस दिन भी सुहानी हमें डाउट था, आप अगर यहाँ पे डेटर भी डेबिट कर देते हैं तो भी ठीक है। We will be assuming कि डेटर में भी ज्यादा लिखा है, क्योंकि बुक में हम डेटर का नाम लिखते हैं। अगर आप डेटर टू बीआर लिख देते हैं तो भी ठीक है, अगर आप सस्पेंस टू बीआर लिखते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। तो ही इज टॉकिंग अबाउट ओवरकास्टिंग ऑफ बीआर बुक, ठीक है। बीआर में किसका नाम आता है भाई, ड्रॉई का, ठीक। तो ड्रॉई को क्या कर सकते हैं आप, डेबिट, और बीआर को क्या करेंगे, क्रेडिट। ओवरकास्टिंग के केस में यू हैव टू रिड्यूस द बैलेंस। तो बीइंग अ नेचर, इसका नेचर क्या है, एसेट, किसी भी एसेट को कम करना है तो आपने क्रेडिट करके कम करना है। सी नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक, फिर से नो राइट नो रॉन्ग, ये क्या है, अंडरकास्ट है। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, इज इट ऑलवेज बीइंग डेबिटेड और क्रेडिटेड, फर्स्टली टेल मी।
सेल्स रिटर्न बुक हमेशा डेबिट होती है कि क्रेडिट होती है? डेबिट होती है। तो ऑलरेडी इसका क्या है, अंडरकास्टिंग है। अंडरकास्ट मीन्स इसमें 990 रुपीज कम लिखा है, बढ़ाने के लिए इसे डेबिट ही तो करना है। So your rectified entry will be sales return account debited to suspense. We are assuming कि another account is correct with rupees 990. Sales return 990. Sales return account debited to suspense account. Come to next. See the board here. See next. Commission paid rupees 660 to Sitaram was posted to commission account. Amount गलत लिखी भाई, आगे वैसे ही 1 लगा दिया उसने। क्या एंट्री लिखेंगे? कमीशन पेड टू सीतारमन, एंट्री आएगी कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कमीशन, दिस आई शुड राइट एट द टॉप। लेट्स सी। हाँ जी, ऊपर देखो, लेट मी इरेज इट। जब कभी भी किसी बंदे को कोई खर्चा पे करते हैं, पर्सनल अकाउंट का नाम कभी नहीं लिखते। हमें एंट्री करनी चाहिए थी कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। आपने बंदे का नाम लिख दिया, सीताराम का नाम लिख दिया। एक तो नाम लिख दिया, दूसरा अमाउंट भी गलत लिखी। सो आई शुड डेबिट, नॉमिनल अकाउंट मेरे को ओपन करना है, ना कि पर्सनल अकाउंट। लेट्स सी, व्हेन यू पे कमीशन, कमीशन शुड बी डेबिटेड। एंट्री आएगी कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सो व्हाट इज माय राइट एंट्री? Commission to cash, and the right amount was 660 rupees, right? Commission double M से लिखो, that is 660। कहां पे गलती हुई आपसे? आपने कमीशन अकाउंट में ही अमाउंट गलत लिख दी। इट मींस कि कैश में ठीक लिखी है, सीताराम का नाम नहीं लिखा आपने, आपने कमीशन ही लिखा, लेकिन 1660 लिख दिया, 1000 रुपीज ज्यादा। टू कैश ठीक है, मींस एरर सिर्फ एक अकाउंट में हुआ है, कमीशन के अकाउंट में आपने अमाउंट गलत लिखी है, कैश में ओके है। तो आपको नहीं लगता कमीशन में 1000 रुपीज ज्यादा लिख दिया है? कैसे रेक्टिफाई करें? किसी भी खर्चे को अगर आपने 1000 से बढ़ा दिया है, कम करने के लिए आप क्रेडिट करोगे, दैट इज तो डेट श्योर कमीशन क्रेडिट होना है। डेबिट करने के लिए आई एम डाउटफुल, आई हैव टू ओपन एन इमेजिनरी अकाउंट विच वी कॉल सस्पेंस अकाउंट, एंड दैट विल कम विद डिफरेंस। क्योंकि 1000 रुपीज आपने ज्यादा लिख दिए हैं, कम करने के लिए कमीशन को क्या कर दो, क्रेडिट। नरेशन बुक में से देखिए, बीइंग कमीशन अकाउंट पोस्टेड ओवर या ओवर पोस्टेड, ठीक है, या ओवर रिकॉर्डेड, नाउ रेक्टिफाइड। बी ब्रीफ व्हेन यू राइट नरेशन। आगे चलिए। वेजेस पे किए थे तो डेबिट होने चाहिए थे, आपने गलती से उसे अपनी इनकम मान लिया, आपने क्रेडिट कर दिया, डबल अमाउंट से आएगी। सी दैट वेजेस पेड हाउ मच, 450 पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ वेजेस, आपने वेजेस को क्रेडिट कर दिया। एंट्री आनी चाहिए थी वेजेस टू कैश। पहले तो राइट एंट्री देखो, दिस इज आवर राइट एंट्री, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, दैट वाज 450 रुपीज। आपने वेजेस को क्रेडिट कर दिया भाई, आपने 2 वेजेस लिख दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, खर्चे मींस एक्सपेंसेस शुड ऑलवेज बी डेबिटेड, बट यू आर जस्ट क्रेडिटिंग द एक्सपेंसेस, एंड द सेकंड अकाउंट इज करेक्ट। आपने 2 अकाउंट क्रेडिट कर दिए, कैश क्रेडिट ही किया है सही अमाउंट से, लेकिन डेबिट कुछ भी नहीं किया। तो अब क्या करें? जो वेजेस डेबिट करनी थे वो करेंगे, जो गलती से क्रेडिट हो गई है उसे भी डेबिट करके सही करेंगे, तो टोटल बनेगा 855। जो सही है वो तो करना ही करना है, ये सिखाया हुआ आपको टॉपिक। जो गलत हुआ है उसे भी डेबिट करके सही करना है। So I will be debiting wages with total of that is 855. Up to cash में लिख नहीं सकती, why? Because cash is already correct. There is only an error in one account. एक ही account में error है. So I have to take an imaginary account, help of imaginary account. That is what suspense. That is 855. Being wages account credited with the wrong amount, now rectified. ठीक है, 450 की जगह 405 लिख दिया, तो अब हम लोगों ने उसे सही कर दिया। नाउ कम टू नेक्स्ट। यस, परचेज बुक का टोटल अगले पेज पे लेके गए तो अमाउंट गलत लिख दी। लेट्स सी द डिफरेंस। देखते हैं ओवरकास्ट हुआ कि अंडरकास्ट हुआ। इसमें भी राइट रॉन्ग नहीं होगा, वर्किंग नोट्स की हेल्प से समझो पहले। परचेसेस बुक में क्या हुआ,
परचेज बुक टोटल था 1650। जब आप अगले पेज पे लेके गए ना, आपने डिजिट चेंज कर दिए, सेकेंड और थर्ड डिजिट इंटरचेंज कर दिया, आपने टोटल लिख दिया ये। आपको नहीं लगता 90 रुपीज का डिफरेंस है? और 90 रुपीज से परचेज बुक कम है। कहीं पे टोटल लिखना था 1650, 1650, आपने गलती से लिख दिया 1560। सो यू रिड्यूस द बैलेंस। परचेज बुक का बैलेंस आपने 90 रुपीज से कम कर दिया है। बढ़ाने के लिए परचेजेस को डेबिट करो, because purchase is my expense, it is always to be debited, its nature is debited. अब second account is correct, so I will be assuming imaginary account, that is suspense account. 90 रुपीज से एंट्री आएगी, ना 1650 से आनी है, ना 1560 से आनी है. You will be passing the entry with the difference only because you just wrote less amount. आपने उसे कास्ट शॉर्ट कर दिया है. चेक फ्रॉम द सॉल्यूशन, इट इज करेक्ट. आगे चलते हैं. दिनेश से सामान खरीदा 780 का. पहले सही एंट्री करते हैं. दिनेश से जब सामान खरीदा है तो एंट्री आनी चाहिए थी परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू दिनेश. उधार पे खरीदा ना, क्योंकि पर्सन का नाम है. वी बॉट इट ऑन क्रेडिट बेसिस. दिस इज माय राइट एंट्री. परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू दिनेश. यू बॉट द गुड्स ऑफ 780, राइट. आपने परचेसेस में ठीक लिखा, लेकिन दिनेश में आपने 180 लिख दिया. टू दिनेश आपने 180 कर दिया. परचेसेस आपने 780 ही किया. परचेसेस तो करेक्ट है भाई, क्या करें? आपको नहीं लगता दिनेश में 600 रुपया कम लिखा है? यू रोट लेस अमाउंट इन दिनेश अकाउंट. कहीं पे लिखना था 780, आपने 180 लिख दिया. इट मीन्स कि 600 रुपया आपको दिनेश में और लिखना है. तो 600 रुपए से दिनेश को और क्रेडिट कर दो. अब मेरे को नहीं पता मैं डेबिट किसको करूं. आई एम डाउटफुल, क्योंकि सेकेंड अकाउंट इज करेक्ट. So I have to take the help of suspense account. Suspense to Dinesh. That is what? 600. Wrong amount posted. Being wrong amount posted to Dinesh account. Now rectified. दिनेश के अकाउंट में गलत अमाउंट लिख दी थी, अब हमने रेक्टिफाई कर दिया. फॉलो अप 8 देखो भाई. एनी डाउट टू एनीवन? यू कैन आस्क. एनी डाउट सिटिंग हियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट है, यू मे रेज योर हैंड, यू कैन आस्क योर क्वेरी. So 8th follow up देखते हैं. Let's see. On the very next page, 15.24, follow up 8. Let's solve that. पढ़िए first statement. Again, I will be preparing one column for the right entry, then of wrong, and then of rectified. चलिए जी, लेट्स स्टार्ट. टोटल ऑफ परचेज बुक ऑन पेज नंबर 10. ठीक है, पेज बुक की ऐसे नंबरिंग करी होगी ना, तो पेज नंबर 10 का 950 रुपए से टोटल शॉर्ट है. अगला नहीं अभी पढ़ेंगे. एक का टोटल पेज का ज्यादा है, दूसरे का कम है. मैं दो अलग अलग एंट्री करवाऊंगी. पेज नंबर 10 में 950 रुपए क्या लिखे हैं? कम लिखे हैं. तो अब हम लिख देंगे. जब हम अब लिखेंगे तो हमारी एंट्री होगी नो राइट नो रॉन्ग. परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस. 950 रुपए इसमें क्या लिखे हैं? कम. तो आप और लिख दो. इसी लाइन में उसने लिखा है कि पेज नंबर 12 पे आपने 1300 रुपए ज्यादा लिखे हैं, तो अब कम कर दो. परचेसेस को जब कम करना है तो क्रेडिट करके कम करना है. दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं. आई विल टेल यू. सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस, दैट इज व्हाट 1300. क्योंकि ये अलग अलग डेट की होगी तो हम कंबाइन नहीं करते, लेकिन अगर आप कंबाइन भी करो तो आपका डिफरेंस ही एंट्री आएगी. और कितने का डिफरेंस होगा बेटे? 350 का. 350 से आपने परचेसेस को क्या करना है? कम. क्योंकि 1300 में से 1300 आपने क्या लिखा है? ज्यादा. 950 आपने क्या लिखा है? कम. तो आप अल्टीमेटली 450 नेट से एंट्री पास कर दोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस. अदरवाइज अगर दो करते हो तो भी इफेक्ट सेम. तो बेटर है आप दो एंट्रीज करो, वो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि डिफरेंस से आप गलती कर दोगे. ठीक है. सो ट्रीट देम टू सेपरेट एंट्रीज. फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपकी दो एंट्रीज हैं. वन इज कास्टिंग शॉर्ट एंड अदर इज कास्टिंग मोर, ओवर कास्टिंग. यहाँ पे आपने परचेसेस में 1300 रुपए ज्यादा लिख दिए थे, हमने कम कर दिया. वहां पे आपने 950 रुपए कम लिखे थे, तो हमने बढ़ा दिया. नाउ कम टू नेक्स्ट. हाँ, डबल डबल ही बता रहा है. अब डबल डबल ही करो. सेकंड के भी दो पार्ट होंगे.
दिस इज पार्ट ए। क्या हुआ, सेल्स रिटर्न बुक का पेज नंबर 7 का टोटल 2500 रुपए से ज्यादा है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेल्स रिटर्न बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, तो आपका इस पेज पे 2500 रुपया ज्यादा है, कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, मीन सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न होगा, टू सेल्स रिटर्न, दैट इज व्हाट 2500, दिस इज 2500 से सेल्स रिटर्न बुक में टोटल ज्यादा था, आपने उसे क्या कर दिया, कम, रेक्टिफाइड। आगे चलते हैं, पेज नंबर 8 ऑफ द सेम बुक, 600 रुपया कम था, बढ़ाने के लिए बी पार्ट में उसे डेबिट करो। सो आई विल बी डेबिटिंग सेल्स रिटर्न, और सेकेंड अकाउंट इमेजिनरी मेरे को हेल्प लेनी पड़ेगी, टू सस्पेंस, एंड दिस वाज विद 600, इजंट इट? यस, 600। बिल्कुल ऊपर जैसा हुआ, एक बार आपने टोटल ज्यादा लिख दिया, दूसरी बार आपने कम लिख दिया, तो मैंने रेक्टिफाई कर दिया। अब अगर आप नेट से करोगे तो नेट से 1900 होगा भाई, 1900 से आपको अपनी सेल्स रिटर्न बुक क्या करनी पड़ेगी, कम, क्योंकि 600 दोनों में क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, तो आप 1900 से नेट एंट्री भी पास कर सकते हो। तो इन दैट केस आप उस बुक को 1900 से क्या करोगे, कम करोगे, ठीक है, बेटर है दो ही करो, दिस इज माई एडवाइस टू यू, बट यू कैन पास अ सिंगल एंट्री एज वेल। हाँ जी, अगला, पहले वर्किंग नोट्स में समझो इसका पॉइंट का मतलब क्या है। सी नेक्स्ट, व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। हम कैश बुक बनाते थे, कैश बुक डबल कॉलम में एक बैंक कॉलम हुआ करता था, एक कैश कॉलम हुआ करता था। सो डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहा है भाई, वो क्या कह रहा है, बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड, और उस दिन भी बताया था डेबिट साइड का मतलब होता है रिसीट साइड। आपने क्या लिखा, वॉज रॉन्गली कास्ट एज, आपने गलत अमाउंट लिख दी, 1,50,111, विच शुड बी, जो सही अमाउंट थी वो थी 1,40,111, ठीक है। आपको नहीं लगता बैठे बिठाए 10,000 का डिफरेंस है? दिस इज व्हाट रॉन्ग अमाउंट, जिसे मैं क्रॉस से सिग्निफाई कर रही हूँ, दिस इज व्हाट करेक्ट अमाउंट, जिसे मैं टिक से सिग्निफाई कर रही हूँ। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे या बैंक कॉलम की डेबिट साइड पे आपने 10,000 रुपया ज्यादा लिख दिया, आपको नहीं लगता कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस बढ़ गया होगा? 10,000 आपने ज्यादा लिख दिया, इनकमिंग ऑफ कैश मतलब रिसिप्ट ऑफ कैश, अब उसे क्या करेंगे, कम करेंगे। जब उसे कम करेंगे, फिर से नो राइट नो रॉन्ग है, बिकॉज ओवरकास्टिंग है, बैंक के बैलेंस को कम करो, और डेबिट किसको करो, सस्पेंस को, क्योंकि सेकेंड अकाउंट हमें पता ही नहीं है, वी आर डाउटफुल। In order to remove or in order to put the doubtful items, we open what, suspense account with rupees 10,000. 10,000 से बैंक कॉलम का बैलेंस बढ़ गया था, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट किस पे देखना है, कैश बुक के ऊपर। कैश बुक के बैंक कॉलम का 10,000 से बैलेंस बढ़ गया, उसे कम करने के लिए क्रेडिट करो। आगे चलते हैं, अरुण आर डेटर, चलो ये भी समझो पहले। अरुण हमारा डेटर है, डेटर का मतलब क्या होता है, अरुण ने हम लोगों से उधार पे सामान खरीदा था। सो अरुण वॉज आर डेटर, उसने हमें एक चेक दिया, he gave us a check, ठीक, कितने का, he issued a check, पहले देखो अमाउंट 4615, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, when Arun gave me a check, तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, I am writing here the right entry, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अरुण, ठीक है, ये उसने मेरे को चेक दिया, 4615 का चेक उसने मेरे को दिया, मेरी सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, दिस इज राइट एंट्री कॉलम, हुआ क्या, बट इट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। मैंने अरुण के अकाउंट में, मैंने टू अरुण कितने से कर दिया, आई रोट टू अरुण विथ 5614, कहता बैंक में ठीक लिखा है, कैश बुक के बैंक कॉलम में यही ठीक लिखा है, इट मीन्स कि बैंक कॉलम इज करेक्ट। आपको नहीं लगता आपने अरुण में ज्यादा अमाउंट लिख दी है, कितनी ज्यादा लिखी है, लेट मी फाइंड आउट द डिफरेंस, 5614 आपने लिख दिया, लिखना था 4615, दिस इज 9 10 9, हाँ जी 0, कितना बनेगा 10 1 1099 का डिफरेंस है, चेक कर लेते हैं काउंटर चेक, दिस इज व्हाट 4, दिस इज व्हाट 11, 5 आना इधर है ना, 99 आना, टोटल चेक करो दोबारा से, दिस इज व्हाट, इन दोनों का टोटल चेक करो,
दिस इज 4, दिस इज 11, दिस इज 16, ठीक है, बिल्कुल डन। 999 का डिफरेंस है भाई। अरुण के अकाउंट को आपने 999 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। अब करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए अरुण से वो पैसे लेंगे वापस, मींस अरुण को डेबिट करेंगे, ठीक है। अरुण में आपने 999 से ज्यादा अमाउंट क्रेडिट कर दी, तो रेक्टिफाई करने के लिए उसे क्या करेंगे, डेबिट। अरुण अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस, क्योंकि बैंक तो करेक्ट है, अदर अकाउंट इज करेक्ट, सो एंट्री बनेगी अरुण's account debited to what suspense account. Being a wrong amount entered or credited to Arun's account, now rectified. आगे चलते हैं। अकाउंट ऑफ मैसेज अरोड़ा, मैसर्स, एमएस का मतलब होता है मैसर्स भाई, मर्चेंट का प्लूरल मैसर्स होता है। अरोड़ा एंड कंपनी आ सप्लायर, मींस वो मेरा क्रेडिटर था, उसके अकाउंट में आपने 760 रुपीज कम लिखे हैं, तो अब लिख दो ना, उसको क्रेडिट करना है टू मैसर्स अरोड़ा एंड कंपनी। अब कर दो उसे क्रेडिट, ही इज आवर सप्लायर, ही इज आवर क्रेडिटर, कितना 760 रुपीज। डेबिट करने के लिए इमेजिनरी अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज अदर अकाउंट अगेन इज करेक्ट। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू मैसर्स अरोड़ा एंड कंपनी, दैट इज 760। आगे चलो, 550 ओनिंग बाय अ डेटर। हम लोगों ने 550 रुपीज एक डेटर से लेना था, गलती से वो 550 वाला डेटर हम लोगों ने सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट में नहीं डाला, हम भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन, तो अब डाल दो ना, नो राइट नो रॉन्ग, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस। So this is the way how to rectify the errors. 550 rupees. Okay. We were supposed to take the amount from our debtors, लेकिन हम लोगों ने उसे के debtors के अकाउंट में नहीं डाला, so now we are rectifying it. Now come to the illustration number 9. 7th illustration को बेस बनाओ और errors को rectify करो। 7th illustration कौन सी है? हाँ जी, 7th illustration वाली स्टेटमेंट पढ़ेंगे और सस्पेंस अकाउंट से जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, क्योंकि 7th illustration में उसने पहले लेजर अकाउंट बनाए थे। नाउ आई विल बी टेकिंग 7th illustration एज अ बेस एंड आई एम गोइंग टू पास जर्नल एंट्रीज। पेज नंबर 15.19 पे आ जाइए। 7th illustration की ही आपने स्टेटमेंट लेनी है और उसे सस्पेंस अकाउंट से सॉल्व करना है। लेट्स सी। पढ़िए 7th illustration। Again, right and wrong. This is for rectified. पढ़िए जी क्या हुआ। A sale of ₹262 मूर्ति, नाम गलत लिख दिया और साथ में अमाउंट भी गलत लिखी। जब मैं मूर्ति को सामान बेच रही हूं तो मेरी राइट एंट्री बननी चाहिए थी मूर्ति टू सेल्स, isn't it? मूर्ति टू सेल्स, and the amount he is giving me in the question 260. आपने मूर्ति की जगह नाम पूर्ति का लिख दिया और आपने पूर्ति को क्रेडिट किया भाई, ठीक है, वो भी गलत अमाउंट, पूर्ति को क्रेडिट कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट किया, और वो भी अमाउंट कितनी 620। सेल्स आई विल बी अज्यूमिंग करेक्ट, मींस डेबिट कुछ भी नहीं किया, पूर्ति को क्रेडिट कर दिया, सेल्स सही अमाउंट से ही क्रेडिट हुई, मूर्ति का नाम ही नहीं लिखा, तो अब रेक्टिफाइड एंट्री में हम उसे कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सी। पूर्ति को डेबिट करना था, करेंगे विद द करेक्ट अमाउंट 260। पूर्ति गलती से क्रेडिट हो गई है, उसे भी डेबिट करके सही करेंगे, दैट इज 620। अब क्रेडिट वाला अकाउंट मेरा पहले से सही है, आई हैव टू ओपन एन इमेजिनरी अकाउंट, वंस अगेन सस्पेंस अकाउंट, दोनों का टोटल दैट इज 880। चेक करो सोल्यूशन। 9th illustration में इसने सॉल्व किया है, बिल्कुल ठीक, मूर्ति डेबिट, पूर्ति डेबिट टू सस्पेंस, राइट, विद ₹880। 7th की स्टेटमेंट लेनी है, सोल्यूशन 9th का देखना है, नरेशन जो उसने लिखी है, बीइंग रॉन्ग क्रेडिट गिवन टू पूर्ति एंड ओमिशन इन पोस्टिंग मूर्ति, पूर्ति को रॉन्ग क्रेडिट दे दिया और मूर्ति को बिल्कुल ओमिट ही कर दिया, नाउ रेक्टिफाई। तो दोनों पॉइंट आपने लिखने हैं, बीइंग रॉन्ग क्रेडिट गिवन टू पूर्ति एंड पोस्टिंग टू मूर्ति's अकाउंट इज ओमिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। आगे चलो जी, सेकंड पॉइंट देखो, 7th illustration का सेकंड पॉइंट देखो। परचेज बुक का टोटल था 16,000, यस,
देखो बात हो रही है परचेज बुक की और उसका टोटल था 16,000, आपने गलती से इसे सेल्स बुक में डाल दिया, आपने अपनी सेल्स बुक बढ़ा दी। जब आपने सेल्स बुक बढ़ाई तो सेल्स बुक को पहले तो कम करो, दैट इज सेल्स को कम करने का मतलब है उसे डेबिट करो विद 11,000। परचेसेस में डाला ही नहीं, परचेसेस में अब डालो, परचेसेस में 16,000 डाला ही नहीं। अब दूसरा अकाउंट हमारा करेक्ट है, सो फिर से इमेजिनरी अकाउंट सस्पेंस अकाउंट दैट इज 27,000। Being the total of purchases book wrongly posted to the sales book now rectified and omitted to be posted in the purchases book। एक में डाला ही नहीं जिसमें डालना था अमाउंट, उसे सही करो। दूसरे अकाउंट में गलती से डाल दिया, उसको क्या करो, रेक्टिफाई करो बाय रिवर्सिंग इट। सो लाइक दैट वे वी हैव टू रेक्टिफाई। बाकी कंटिन्यू करेंगे भाई कल।